गाइस, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। वेलकम इन पाल कॉमर्स विद साइंस टेक्नोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं महिपाल वकील। आज आपको SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है MCOM का। मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस पूरा कराऊँ। चलिए, देयर इज नो टाइम वेस्ट, रेडी टू स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, उसमें हमें क्या पढ़ना है ऑब्जेक्ट में? डिफाइन द स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप स्ट्रेटजी विद देयर पॉलिसी एंड टेस्ट इट, एंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, और नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी क्या होता है? द स्ट्रेटजी इज डिफाइंड एज प्लान developed at each level of management for the attainment of objective and realization of long-term goals of organizations. Is a set of coherent actions which are performed in order competitive advantage. The term was primarily used. It was later adapted to field business of management. The Greek and strategies were status means army. Strategy is the unified, comprehensive, integrated plan that relates the strategic advantage of the organizations of challenges of the environment, and it is designed to ensure that basic objectives of enterprise are achieved through proper implementation of process. इट स्टेज द फॉलोइंग। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या होती है? हमारी यूनिफाइड, कंप्रहेंसिव, इंटीग्रेटेड प्लान होते हैं, और एनवायरनमेंट में चैलेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन फॉर अचीविंग बेसिक ऑब्जेक्टिव। दिस डेफिनेशन प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व स्ट्रेटजी। 3 टाइप के एक्शन हमारी स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी में हमें लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने होते हैं। अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, जो स्ट्रेटजी का ये कोर्स होता है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो स्ट्रेटजी में जो रिसोर्स होते हैं उसको हमें अलोकेट करना होता है। Strategy as action exclusive object setting. This is another view of which strategy has been defined in a way in which the organization reacting to its environment develops its principal resource and sharpens its efforts and pursuit of its purpose. So Michael Porter has defined strategy: creation of unique and valued position involving different set of activities. The organization that is statically positions perform different activity from rivals or perform similar activity in different ways. चलिए अब फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी समझते हैं। फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी के क्या फीचर होते हैं? स्ट्रेटजी के 5 पीस हैं। स्ट्रेटजी के फीचर हैं वो क्या हमारे 5 पीस हैं। दीज आर 5 पीस। पैटर्न्स, P फॉर पैटर्न, सेकंड प्लान्स, थर्ड है हमारा पोजिशन, और फोर्थ है पर्सपेक्टिव और प्लो। तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न when we say that strategy is a pattern, we mean to say that organization has been consistent in the following particular course of action. Organization which marks responsive product usually follows high-end strategy, and this pattern is repetitive in nature. Pattern shows the past behavior. This become realized strategy. यानी जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न हमारा किस बेस पे शो कर रहा है? पास्ट टाइम पे हमारा पैटर्न शो कर रहा है। सेकंड हमारा प्लान है। when we see strategy as a plan, it means preparing for future, looking ahead. This becomes intended strategy. Usually, organization witness quite contrast between the intended strategy, realization of strategy. So here, if intended strategy becomes realized strategy, here integrated strategy becomes realized strategy, it becomes the delivered strategy. Otherwise, it is deemed to unrealized strategy. The strategy becomes an emergent strategy where the plans are followed. What steps, for example, organization plan to not make decision diversification
at a one go instant towards the diversification step manner. थर्ड हमारा है पोजीशन. थर्ड हमारा क्या है? पोजीशन. पोजीशन इन सर्टेन केस द स्पेसिकली niche market strategy is position. For example, fast food chain wants to locate particular products in specific market. Michael Porter has discussed the concept of positioning, thereby increasing the value of organization quite categorically. Perspective. फोर्थ पी हमारा है perspective. Perspective में क्या आएगा? Strategy is perspective, which means strategy looks the vision of organization in positions. It looks the external environment, whereas perspective it looks the internal environment. फोर्थ पॉइंट है प्लो. प्लो का मतलब क्या है? दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग स्ट्रेटजी. प्लो इज द tactic used the organization to outwit its competitors. These 5 strategies explain the concept of strategy under different situations. Their strategy. जो प्लो क्या होता है? सेट ऑफ डायरेक्शन, फोकस एफर्ट और डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोवाइड कंसिस्टेंसी. डिफरेंट फीचर्स. डिफरेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटजी इज डिफेक्ट इन द फिगर. फिगर में क्या है हमारा? ये प्लान होता है, पोजीशन होता है सेकंड, थर्ड होता है पर्सपेक्टिव, फोर्थ होता है प्लो और 5 होता है पैटर्न. ये 5 पीस हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ स्ट्रेटजी. तो जो नेचर ऑफ स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी इन्वॉल्व द बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल बोथ आर इंसेपरेबल. स्ट्रेटजी इन्वॉल्व बोथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनवायरमेंटल बोथ आर इंसेपरेबल. यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं. स्ट्रेटजी लाइक ए मोज़ेक, इट कैन नॉट बी स्ट्रक्चर. इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही प्रोग्राम है, ना ही रूटीन एंड रिपीटेटिव है. स्ट्रेटजी इज ए फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. स्ट्रेटजी का जो इफेक्ट होता है हमारा फ्यूचरिस्टिक होता है. स्ट्रेटजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ बोथ. स्ट्रेटजी आर द फॉर्मुलेटेड एंड डिफरेंट लेवल. या डिफरेंट लेवल का मतलब होता है 3: टॉप, मिडल एंड बॉटम. स्ट्रेटजी इन इंटीग्रेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एनालाइज डिसीजन मेकिंग. स्ट्रेटजी का प्रयोग हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए क्या आता है? अब हम मतलब समझेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? वी नाउ नो दैट स्ट्रेटजी इज सीरीज ऑफ स्टेप्स और बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन. तो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट होता क्या हमारा? विजन, मिशंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कंसर्न विद द effective deployment of business strategy for the achievement of the organization objective for the purpose of reaching the desired goal. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब हमारा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट होता क्या हमारा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस. स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हमारा एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये हमारा मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. स्ट्रेटजी मैनेजमेंट बिगिंस विद फॉर्मुलेशन ए डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन. जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? यदि जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं उसको फॉर्मुलेट करते हैं. फॉर्मुलेट कहाँ पर करेंगे? एक कागज़ पर उन्हें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है और ऑफ ए डिजायर्ड फ्यूचर, जो फ्यूचर में चाहते हैं उसको प्रेजेंट में ही उनको फॉर्मेट करना होता है. फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस फॉलोड व डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट इज एट द कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कोर ऑब्जेक्ट उनका क्या है? सेटिंग अप टारगेट फॉर रीचिंग द फ्यूचर प्लान. उन्हें टारगेट सेट करने पड़ते हैं जिससे कि हम फ्यूचर प्लान तक हम पहुँच सकें. एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स in the market by analyzing resource available with the organizations. Each formulating strategy for effective and efficient utilization of resource. स्ट्रेटजी हम फॉर्मुलेट करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य ये होता है कि हम अपने जो रिसोर्स हैं उसका हम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइज कर सकें और मैच द ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटी विद द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी.
जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी है उसको हम मैच कर सकें, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके साथ हम मैच कर सकें। जैसे हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है और और एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटी है, हम अपॉर्चुनिटी को अपनी कैपेबिलिटी के साथ मैच कर सकें। जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट होता है वो ये फ्यूचरिस्टिक होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेस, और ऑर्गेनाइजेशन का एक वाइड प्रोसेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटजी पॉलिसी, यानी कि स्ट्रेटजी पॉलिसी और जो स्ट्रेटजी पॉलिसी डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी में क्या अंतर होता है ये हम समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। स्ट्रेटजी कंसेप्ट समझते हैं। स्ट्रेटजी इज ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी एक प्लान होता है ऑफ एक्शन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव उसको हम अचीव कर सकें। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी इज द गाइडलाइंस फॉर सर्टेन एन एक्शन एंड डिसीजन टू टेकन एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन अलग पॉलिसी होती है, उन्हें सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं। जो स्ट्रेटजी जो स्पेसिफिकेशन है, ये स्ट्रेटजी की होती क्या है? प्लान ऑफ एक्शन का प्लान होता है। पॉलिसी क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, जो भी हमारी एक्शन है उनके प्रिंसिपल होते हैं पॉलिसी। नेचर में क्या? स्ट्रेटजी क्या है? फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल को हम टाइम पर बदल भी सकते हैं। और पॉलिसी क्या होती है? फिक्स, वेरियस एक्सेप्शन। भाई पॉलिसी हमारी फिक्स होती है, कुछ वेरियस एक्सेप्शन को छोड़कर पॉलिसी हमारी क्या फिक्स होती हैं, और स्ट्रेटजी हमारी फ्लेक्सिबल होती है। यानी कि हमारी जो स्ट्रेटजी टाइम पर चेंज भी हो सकती है। यानी स्ट्रेटजी हमारी प्रोएक्टिव होती है और रिएक्टिव भी होती है। तो एप्लीकेशन में क्या होगा हमारा? एप्लीकेशन में स्ट्रेटजी रिलेटेड ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर सिचुएशंस और सिचुएशन विच मे बी अकर इन फ्यूचर। पॉलिसी में क्या होगा? related to the rules of the organizations for the repetitive activity, governance and control, managerial actions। और डायरेक्शन में क्या होगा? स्ट्रेटजी में क्या एक्शन ओरिएंटेड होती है, और पॉलिसी में क्या होती है? डिसीजन ओरिएंटेड होती है। जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो हमारी क्या होती है? एक्शन ओरिएंटेड होती है। जो पॉलिसी वो हमारी क्या होता है? डिसीजन ओरिएंटेड होता है। स्ट्रेटजी हमारी रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर सिचुएशन विच मे बी अकर इन फ्यूचर। ठीक है। फॉर्मुलेशन, जो स्ट्रेटजी होती है हमारी टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो हमारी स्ट्रेटजी को हमारे टॉप एंड मिडिल लेवल फॉर्मेट करते हैं। और जो हमारी पॉलिसी होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही पॉलिसी भी फॉर्मेट करता है। कवरेज, जो स्ट्रेटजी होती है वो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा काम करती है। जो हमारी जो पॉलिसी होती है वो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट की पॉलिसी होती है। डिस्क्रिप्शन, इसका प्लान ऑफ एक्शन यूज टू अचीव द गोल्स। और पॉलिसी में क्या होगा? सेट ऑफ प्रिंसिपल, डिस्क्रिप्शन, डूज एंड डोंट डूज। भाई ये करने हैं, ये नहीं करने हैं। इट इज़ द कंसिडर्ड टू बी मिनी मिशन स्टेटमेंट। ये हमारे जो हमारी पॉलिसी, हमारी जो मिनी मिशन स्टेटमेंट होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे स्ट्रेटजी वर्सेस टैक्ट। तो स्ट्रेटजी वर्सेस टैक्ट क्या होता है? स्ट्रेटजी वर्सेस टैक्ट, आर्ट ऑफ वार रॉड। स्ट्रेटजी विदाउट टैक्टिक इज द स्लोएस्ट रूट टू विक्ट्री। Tacit without strategy is the noise of before the defeat. This shows the importance of tactics in accompanying a specific strategic decision. Strategy is on one end of the organization decision spectrum, while tactics lies on the other hand. A few points of distinction between the two are as follows. Strategy determines the major plan to undertake which, while tactics is the mean by which previously determined plan are executed.
The basic goals of strategy according to military science is to break the will of the army, deprive the enemy of the mean fight occupy territory, destroy or obtain the control resource, make them surrender. The goal of tactic is to achieve success in the given action, and this form one of part of group related military action. चलिए आगे बढ़ते हैं. Tactics can be delegated to all the level of organizations, while strategy decisions cannot be delegated to low in the organization. Strategy is formulated in both of continuous as well as irregular manner. The decisions are taken on the basis of opportunity, the new idea. The tactic is determined on a periodic basis by various organizations. A fixed timetable may be made on following tact. The strategy has a long-term perspective, or occasionally it may have short-term duration. Thus, the time horizon in terms of strategy is a flexible, but in case of tacit is a short run and determined. The decision taken as part of strategy formulated implementation have a high element of uncertainty and are taken under the conditions of partial ignorance. In contrast, the tactical decisions are more certain as they work upon the framework set by strategy. So the evaluation of strategy is difficult than the evaluation of tactics. Since the attempts is made strategy relate to organization with its environmental requirement, information is more than required in tacit. The tacit use the information available internally in the organization. The formulation of strategy affected the considering by personal value or person involved in the process, but the same is not in the case of tacit implementation. Strategy are the most important factor organization because they decide the future of course of action of organization as whole. On the other hand, the tacit has importance only the specific part of organizations. The comparison of strategy and tactics. Comparison strategy tactics होता क्या है? गोल या जो स्ट्रेटजी हमारे कंट्रोल ऑफ रिसोर्स को कंट्रोल करती है, और जो टैक्टिक्स होते हैं अचीव सक्सेस. टैक्टिक्स से हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. डिलीगेशन में क्या है? स्ट्रेटजी हमारा टॉप एंड मिडिल लेवल फॉर्मुलेट करता है और टैक्टिक्स को ऑल लेवल यानी कि टॉप मिडिल एंड बॉटम. फॉर्मुलेशन में क्या होगा? स्ट्रेटजी हमारी फ्लेक्सिबल है और कॉन्टीन्यूस. स्ट्रेटजी हमारी एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है एंड कॉन्टीन्यूस स्ट्रेटजी हमारी चलती रहती है. टैक्टिक्स क्या होता है? फिक्स होता है, एक पीरियड एक होता है, किसी निश्चित समय के लिए होते हैं. तो जो स्ट्रेटजी हमारी लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, जो टैक्टिक्स होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं. और स्ट्रेटजी लेवल ऑफ सर्टेनिटी, तो स्ट्रेटजी में हाई होता है और टैक्टिक्स में इसमें लो होता है. लेवल ऑफ सर्टेनिटी क्या होता है? इसमें स्ट्रेटजी में हाई होगा, इसमें लो होगा. स्ट्रेटजी हमारी जो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वर्क काम करती है, और जो टैक्टिक्स हमारी ये हमारी इंटरनल, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करेंगे, ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में काम करेंगे. लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, तो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी 3 लेवल पे स्ट्रेटजी बनती है हमारी. फर्स्ट लेवल हमारा कॉर्पोरेट लेवल पर, सेकंड हमारा बिजनेस लेवल पर, थर्ड लेवल पर हमारा फंक्शनल लेवल पे. ये कॉर्पोरेट लेवल पे इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं. बिजनेस लेवल पे हमारे कंपनी के बिजनेस मैनेजर होते हैं, और फंक्शनल लेवल पर हमारे फंक्शनल मैनेजर होते हैं. There are basically 2 categories of organization, one which have different business organized, different direction of product group are known as profit center, ये strategic business unit, and other which consist of organization which are single product organization. The example of first category can be organization which is highly integrated producing textile yarn. फीचर्स ऑफ SBU क्या होता है? स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट.
SBU का मतलब होता है यदि हमारी प्रोडक्ट एक वन अंडर रूफ के अंदर नहीं आ सकते तो हम उसको हम SBU कहते हैं। SBU because of the different environmental served each product, a SBU created for each independent product segment। जैसे कि वन सिमिलर ग्रुप इज नोन वन SBU और अदर सिमिलर ग्रुप इज अदर SBU। Each and every SBU different from the another SBU due to distance Venus area is very certain। Each SBU has a clearly defined product marketing segment strategy is developed strategy according to its own capability and needs with overall organization's capability and needs। Each SBU allocates resource according to its individual requirement for the achievement of organization objective। As against multi-product organization, single product organization have single strategy business unit। In these organizations, corporate level strategies serve the whole business। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है? एट द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आर फॉर्म्ड एज द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कैटेसिस कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कैटेस क्या होते हैं? दीज आर वैल्यू ओरिएंटेड और कंसेप्चुलाइज एंड लेस कंक्रेंट देन डिसीजंस द अदर टू लेवल्स। दीज आर द कैटेसिस बाय ग्रेटर रिस्क cost and profit potential as well as flexibility। Most of corporate level strategy are futuristic होती हैं, innovative and pervasive in nature। They occupy the highest level of strategy decisions। They occupy the high level of strategy decision making on cover the action of dealing with the objective organization। Such decisions are made by top management of the organization। The example of such strategy include equation of decisions, diversification, structural redesign। They occupy highest level of strategy decision making and the cover the actions dealing with the objective organization। Such as decisions are made top management of organization। The example of such strategy includes equations of decisions, diversification, structure redesign। The board of directors and chief executive officer are primarily groups involved in this level of strategy in a small family owned business and enterprise in both general manager chief strategy manager। तो वीनस सेकंड होती है हमारी वीनस लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है? द स्ट्रेटजी formulated by each SBU to make the best use of its resource given in the environment it faces comes under the business level strategy। तो business level strategy के कैटेगरीज क्या होते हैं? At such level strategy is comprehensive plan providing the objective for the SBU, allocation of resource among the functional area and coordination between the achievement of corporate level strategy। यानी कि 3 लेवल होते हैं हमारे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल का होता है हमारा मतलब बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल को भी डील करना, और बिजनेस लेवल डील करना होता है हमारा फंक्शन लेवल को। और जो हमारी जो फंक्शन लेवल होता है वो किसको रिपोर्ट करेगा? बिजनेस लेवल को। और बिजनेस लेवल किसको रिपोर्ट करेगा? कॉर्पोरेट लेवल को। बिजनेस स्ट्रेटजी रिलेट विद हाउ and the corporate strategy relate with the what। Business strategy define the choice of product and service or market individual business within the organization। The corporate strategy has impact on business strategy। थर्ड होती है हमारी फंक्शन लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी क्या होता है? दिस स्ट्रेटजी रिलेट टू सिंगल फंक्शनल ऑपरेशन एंड द एक्टिविटीज इन्वॉल्व देयरइन। दिस लेवल इज एट द ऑपरेटिंग एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे? Characteristics: the decisions at this level within the organization are described as a tactical। The strategy are concerned with how different functions of the enterprise like marketing, finance, manufacturing contribute to strategy in other level of organization। ठीक है। और functional strategy deals with the relatively restricted
Plan providing objective for specific function, allocation of resource among the different operation within the functional area, and coordination between them for achievement of SBU, the corporate level objective. तो स्टेट डिसीजन डिफरेंट लेवल, तो स्टेट डिसीजन डिफरेंट लेवल पे होता क्या है, 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, थर्ड क्या होता है, फंक्शनल लेवल। यानी टाइप्स और लेवल ऑफ स्ट्रेटजी हमारे 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजी होती हैं। कॉर्पोरेट लेवल, फर्स्ट होता है हमारा कॉर्पोरेट लेवल, सेकंड होता है हमारा बिजनेस लेवल, थर्ड होता है हमारा फंक्शनल लेवल। यानी कि यहाँ टाइप ऑफ स्ट्रेटजी हमें पता करना हो तो हमारा क्या होते हैं, हमारा तीन लेवल स्ट्रेटजी होती है। फर्स्ट होती है हमारी कॉर्पोरेट लेवल, सेकंड होता है बिजनेस लेवल, थर्ड होता है फंक्शनल लेवल। आप सभी लोग चिल्ला के बोलेंगे, 3 टाइप की स्ट्रेटजी होती है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन में इम्पैक्ट में क्या होगा, कॉर्पोरेट लेवल में क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट जो डिसीजन है वो कौन लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। और बिजनेस लेवल में क्या होता है, मिक्स, क्या होता है, मिक्स। यहाँ मेजर डिसीजन होते हैं। और फंक्शन लेवल पर क्या, इनसिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल डिसीजन होते हैं, HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन, तो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ रिस्क इन्वॉल्व, या कॉर्पोरेट लेवल पर जो रिस्क इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, हमारा हाई रिस्क होगा। जो बिजनेस लेवल पर जो रिस्क हमारा जो इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, हमारा वो मीडियम होगा। और यहाँ पर जो रिस्क होगा, यहाँ पर थर्ड पर लो होगा। प्रॉफिट पोटेंशियल, यानी कॉर्पोरेट लेवल पर हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा हाई होता है। और बिजनेस लेवल स्टडी पे हमारा मीडियम होता है। और यहाँ फंक्शन लेवल पे हमारा ये लो होता है। टाइम हॉरिजन में क्या, कॉर्पोरेट लेवल पे ये फ्यूचरिस्टिक के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ये बिजनेस लेवल ये मीडियम टाइम के लिए होती है। और जो फंक्शन लेवल होती है ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी लो टाइम के लिए होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट लेवल में क्या होती है, हमारी फ्लेक्सिबल होती हैं, टाइम पर डिसीजन चेंज होते रहते हैं। और बिजनेस लेवल में डिसीजन हमारे जो होते हैं फ्लेक्सिबल मीडियम होते हैं। और फंक्शनल ऑपरेशन में यहाँ क्या होता है, लो होते हैं। अडेप्टेबिलिटी में क्या होता है, जो कॉर्पोरेट लेवल जो कंसेप्चुलेशन है वो क्या इनसिग्निफिकेंट होता है। और बिजनेस लेवल पे यहाँ मीडियम होता है। और जो फंक्शनल लेवल होता है अडेप्टेबिलिटी पे सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि जो ऊपर से जो भी ऑर्डर आया है उसको मतलब फॉलो करना है तो करना है।